السلام علیکم ایوری ون. تو آج ہم لوگ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کلاس 6 کا چیپٹر نمبر 17 ہے جس کا نام ہے ہمارے ایک مشہور سائنسداں. اس سے پہلے ہم لوگ چیپٹر کو پڑھیں، کہانی کو سمجھیں. ہم الفاظ میں نے لکھ لیتے ہیں اس کی. تو پہلا الفاظ ہے وظیفہ. وظیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسکالرشپ. وہ رقم جو اچھے اور ذہین بچوں کو تعلیم دینے کے لیے جو ہے ملتی ہے نا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ وظیفہ. یعنی جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں ان کو اسکالرشپ اسکول میں ملتی ہے تو وہی وظیفہ کہلائے گا. قیمت چکانا کیا ہے؟ محاورہ ہے ایک طریقے سے. کیا ہوتا ہے اس کا؟ نقصان برداشت کرنا. یعنی میں نے اس کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے، یعنی بہت بڑا نقصان برداشت کیا ہے، بہت بڑا نقصان جھیلا ہے، یا پھر بدلہ چکانا. ٹھیک ہے. ہاتھ دھونا یہ بھی ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز سے کیا ہو جانا؟ محروم رہ جانا. یعنی کسی چیز سے پیچھے رہ جانا، کوئی چیز نہ ملنا، حاصل نہ ہونا. وطن پرستی کا مطلب ہوگا اپنے وطن سے کیا کرنا؟ محبت کرنا. وطن پرستی اپنے وطن سے محبت کرنا. معمار کا مطلب ہوگا تعمیر کرنے والا، بنانے والا، ہے نا. عمارت، بلڈنگ، گھر، یہ سب چیز جو بناتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ معمار. پرچون کی دکان یعنی عام ضرورت کی چیزوں کی دکان، فٹکر چیزوں کی دکان. ٹھیک ہے. پرچون کی دکان یعنی عام ضرورت کی چیزوں کی دکان. ہونہار کا مطلب عقل مند ذہین. ہونہار کا مطلب عقل مند ذہین. اصرار کرنا یعنی کسی بات پر کیا کرنا؟ زور دینا. اصرار کرنا یعنی کسی بات پر زور دینا. بورڈنگ اسکول یعنی وہ اسکول جہاں بچوں کے رہنے اور کھانے کا کیا ہوتا ہے؟ انتظام ہوتا ہے. بورڈنگ اسکول جہاں بچوں کے رہنے اور کھانے کا انتظام ہوتا ہے. موضوعات یعنی موضوع کی جمع سے بنا ہے موضوعات، اور جس کا مطلب ہوتا ہے جو کیا، اور ایک میننگ کیا ہوتا ہے؟ مضمون. ٹھیک ہے. یعنی کون سا مضمون پر کہانی، مطلب کہانی لکھی ہوئی ہے ہم کہتے ہیں نا، یعنی کس ٹاپک پر لکھا گیا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مضمون. یعنی کہ سبق ایک کہانی لکھی ہوئی تو اس کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے نا، مضمون ہوتا ہے، وہی مضمون کہلاتا ہے. ٹائٹل ہی مضمون کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹائٹل کیا کہلاتا ہے؟ مضمون کہلاتا ہے. موضوع سے بنا ہے موضوعات، یاد رکھنا ہے. اور پھر مضمون. مسئلہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی مسئلہ کھڑا ہونا، یعنی کوئی پریشانی آ جانا، کوئی الجھن میں آ جانا. ٹھیک ہے. نوعیت یعنی قسم، کس نوعیت کی ہے نا. یہ کپڑا کس نوعیت کی، یعنی کس قسم کا کپڑا ہے. سراہا یعنی پسند کرنا، تعریف کی، ہے نا، تعریف کرنا، سراہنا. سماجی کارکن یعنی جو سماج کی بھلائی کے لیے کام کرے. سماجی کارکن یعنی جو سماج کی بھلائی کے لیے کام کرے. تقسیم یعنی بٹوارا. تقسیم کرنا یعنی بٹوارا کرنا. ملک کی تقسیم ہوئی تھی 1947 میں. انڈیا اور پاکستان جب الگ ہوا تھا تو وہی کیا کہلاتا ہے؟ تقسیم ہند یعنی ہندوستان کا بٹوارا. سیلاب زدہ یعنی سیلاب کا مارا ہوا. سیلاب زدہ یعنی سیلاب کا مارا ہوا. یعنی جہاں پر سیلاب آتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ شہر سیلاب زدہ ہو گیا، یعنی وہ شہر میں جو ہے سیلاب کی مار ہوئی. منصوبہ بنانا یعنی پلان بنانا، خاکہ بنانا. منصوبہ بنانا یعنی خاکہ بنانا، پلان بنانا. ٹھیک ہے. تو ایک مرتبہ اور ہم الفاظ معنی کو دیکھ لیتے ہیں. تو پہلا الفاظ کیا ہے؟ وظیفہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اسکالرشپ. وظیفہ کا مطلب اسکالرشپ جو پڑھنے ہوشیار بچوں کو جو ہے ملتی ہے نا، پڑھائی میں مدد کے لیے. جو غریب ہے لیکن پڑھنے میں بچہ اچھا ہے نا، لیکن اگر پیسے کی وجہ سے اگر اس کے ماں باپ نہیں پڑھاتے ہیں تو ویسے بچوں کو دیا جاتا ہے. قیمت چکانا کسی چیز کی یعنی نقصان برداشت کرنا، ہے نا، یا اور بدلہ چکانا. ہاتھ دھو دینا یعنی کسی چیز سے کیا ہو جانا؟ محروم رہ جانا، کسی چیز سے پیچھے رہ جانا. یہ دونوں ہی بھی کیا ہے؟ محاورہ ہے، یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے وطن پرستی یعنی اپنے وطن سے کیا کرنا؟ محبت کرنا. معمار یعنی تعمیر کرنے والا، بنانے والا. معمار یعنی تعمیر کرنے والا، بنانے والا. پرچون کی دکان یعنی عام ضرورت کی چیزوں کی دکان، فٹکر چیزوں کی دکان. ہونہار مطلب عقل مند ہوگا، ذہین ہوگا، بہادر ہوگا، بہادر نہیں ہوگا، عقل مند اور ذہین ہوگا. اصرار کرنا یعنی کسی بات پر کیا کرنا؟ زور کرنا. اصرار کرنا یعنی کسی بات پر زور دینا. اس کے بعد ہے بورڈنگ اسکول یعنی وہ اسکول جہاں پر بچوں کو کیا کرتا ہے؟ رہنے، کھانے پینے، کھیلنے کودنے، ہر چیز کی کیا ہوتی ہے؟ سویدھا ہوتی ہے.
खेलने की सुविधा तो स्कूल में भी होती है, लेकिन खाने पीने सोने की भी जो सुविधा होती है, जहाँ बच्चे 24 घंटे हमेशा वहाँ रहते हैं, वो क्या कहलाता है? बोर्डिंग स्कूल। मौज़ूआत जो है किसकी जमा है? मौज़ू की जमा है मौज़ूआत, और उसी का मतलब होता है क्या? मज़मून। जैसे हर सबक का एक मज़मून होता है, टाइटल होता है, वही कहलाता है मज़मून। मसला यानी परेशानी, उलझन। नौइयत यानी किस नौइयत का है, किस किस्म का है। सराहना यानी पसंद करना, तारीफ़ करना। समाजी कारकिन यानी जो समाज की भलाई के लिए क्या करे? काम करे। तकसीम यानी बंटवारा, तकसीम हिंद यानी बंटवारा, हिंदुस्तान का बंटवारा, है ना, ऐसे याद रखना है। सैलाब ज़दा होना यानी सैलाब का क्या है? मारा हुआ है। मंसूबा बनाना यानी प्लान बनाना, और खाका बनाना। तो अब हम जल्दी से कहानी को पढ़ते हैं। 1905 में जब बरतानवी हुकूमत ने क्या किया, बंगाल को मशरिक और मगरिब के दो हिस्सों में क्या किया, बांटा, तो लोग बिलबिला उठे। यानी कि जब अंग्रेज़ों ने क्या किया, ये हमारा हिंदुस्तान है ना, और यहाँ पर जो है इस तरफ साइड में हमारा क्या है, बांग्लादेश है, बंगाल। तो अब इसको क्या किया, उसके दो टुकड़े कर दिया। पहले बांग्लादेश और बंगाल, यानी कलकत्ता जो है बड़ा वो था, लेकिन उसको जो है किसने, अंग्रेज़ों ने उसको क्या किया, तोड़ दिया, है ना, हिंदू मुस्लिम के चक्करों में, और हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा करके उसको तोड़ दिया। हाँ, तो बंटवारा कर दिया और अलग अलग क्या किया, देश बना दिया। अब स्कूल में जो पढ़ने वाले 12 साल के एक लड़के मेघनाथ साहा को जितना गुस्सा आया था, शायद जो है किसी और को आया होगा। किसका नाम है? मेघनाथ साहा। यानी ये भी क्या है, उस ज़माने का है, 1905 का, जब जो है बांग्लादेश क्या हुआ था, बांग्लादेश का बंटवारा हुआ था, और बंगाल को जो है गिराने की जद्दोजहद करने वाले इनकलाबी नौजवानों के जो 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 जत्थे बन रहे थे, इनमें शामिल होने के लिए मेघनाथ की उम्र जो है बहुत कम थी। यानी कि बंगाल का जब बंटवारा हुआ, विभाजित हुआ, तो उस वक्त जो है लोगों के लिए जो है, लोग जो है इनकलाबी नौजवान, यानी कि इस चीज़ के खिलाफ जब आंदोलन कर रहे थे, है ना, तो इसमें जो है जितने भी लोग भाग ले रहे थे, उन सब में जो है मेघनाथ की क्या उम्र क्या थी, बहुत कम थी। इसीलिए यानी कि अभी वो बच्चे ही थे, उतनी उनमें समझ नहीं थी, इसीलिए उन्हें अपने गम और गुस्से के इजहार के लिए जो है कोई और तरीका लेना पड़ रहा था। उन्हें ऐसा मौका इस वक्त मिल सका जब ये ऐलान हुआ कि बंगाल का एक गवर्नर जो है इस स्कूल को देखने के लिए आ रहा है। अब इस सख्त ताकीद के बावजूद कि गवर्नर के इस्तकबाल के लिए हर बच्चे को क्या होना है, मौजूद होना है। साहा और उनके कुछ दोस्त जो है इस दिन स्कूल आए नहीं जिस दिन गवर्नर को आना था। यानी इन्होंने अपना गुस्सा किसके ऊपर निकाला, कि इनको जब पता चला कि इनके स्कूल में कौन आ रहा है, गवर्नर आ रहा है, बंगाल का एक गवर्नर आ रहा है इस स्कूल को देखने के लिए, और हर बच्चों को कंपलसरी क्या कहा गया है कि आना ही है, वरना सीधा उसके स्कूल से नाम क्या कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा, यानी नाम मिटा दिया जाएगा, वो स्कूल में दोबारा नहीं पढ़ सकता। अब उसके बावजूद जो है साहा ने क्या किया, अपने कुछ दोस्तों के साथ में उस दिन स्कूल गया ही नहीं। अब अगले दिन साहा और उनके दोस्तों के नाम जो है स्कूल के रजिस्टर से काट दिए गए। अब स्कूल से निकल गए ये लोग। साहा को अपने दोस्तों से जो है ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि उन्हें इस वजीफे से भी हाथ धोना पड़ा जो उन्हें चंद महीने पहले जो है मिलना शुरू हुआ था, क्योंकि साहा होशियार बच्चे थे, इनको स्कॉलरशिप मिलती थी, है ना। लेकिन अब जब नाम कट गया तो जाहिर सी बात है, अब इनको स्कॉलरशिप भी बंद हो गई, तो इनको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा अपने दोस्तों के मुकाबले। एक मशहूर और मारूफ साइंसदान बन जाने के बाद भी वतन परस्ती और कुर्बानी का ये जज्बा इनमें मौजूद रहा। यानी अब ये साइंसदान बन गए, साइंटिस्ट बन गए, लेकिन उसके बाद भी जो है ये अपने वतन से मोहब्बत और उसके लिए कुर्बान हो जाने का जो जज्बा था, वो अभी भी उनके दिल में उतना ही गहरा था। अब वतन से मोहब्बत ने उन्हें कौम का मेहमान भी बना दिया। यानी वतन की मोहब्बत की वजह से उन्हें क्या हुआ, कौम की मदद करने वाला बना दिया। ठीक है, उन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान में ना सिर्फ साइंस का मर्तबा ऊंचा करने की कोशिश की, बल्कि वो गरीबों की भलाई के लिए भी क्या करते थे, काम करते थे। यानी वतन से मोहब्बत तो थी ही, और आज़ाद हिंदुस्तान में जो है सिर्फ साइंसदान का मर्तबा ऊंचा करने की कोशिश की, बल्कि क्या करते थे, वो गरीबों की भलाई भी करते थे। यानी अपने फील्ड में जो है वो साइंटिस्ट जैसे थे, तो उसमें वो और अच्छा मेहनत करते जा रहे थे कि ताकि क्या करें, हिंदुस्तान को वो एक अच्छा योगदान दे सके, और साथ साथ में वो क्या करते थे, गरीबों की मदद भी करते थे। अब साहा जो है 6 अक्टूबर 1893 को सिवारा ताली ज़िला ढाका में जो है कहाँ पैदा हुए हैं, ढाका में, जो अब जो है बांग्लादेश में है। ढाका कहाँ है, बांग्लादेश में। इनके वालिद की एक मामूली सी पुरचौन की दुकान थी, यानी छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें बेचते थे उनके वालिद, जिससे क्या है, घर का खर्च बहुत मुश्किल से ही निकल पाता था, है ना। छोटा मोटा किराने का दुकान था, जिससे उनका घर का खर्च
निकलता था, इसलिए वो चाहते थे कि उनका 5वां बच्चा मेघनाथ जो है बचपन से ही घर के लिए कुछ कमाना शुरू कर दे। यानी वो अपने भाई बहनों में 5वें नंबर पे थे, 5 भाई बहन थे वो लोग, और उनके वालिद इसीलिए चाहते थे कि मेघनाथ क्या करे, बचपन से ही कमाने पर ध्यान दे ताकि घर का खर्चा आसानी से चल सके। लेकिन मेघनाथ के उस्तादों ने क्या किया, इसरार किया कि वो मेघनाथ को तालीम ज़रूर दिलाए, क्योंकि वो बहुत होनहार और ज़हीन तालिब इल्म था। लेकिन जो है घर की ज़रूरतें भी पूरी करनी थी, लेकिन उसके उस्तादों ने क्या किया, इसरार किया, यानी ज़िद करी, उनको समझाया उनके वालिद को कि ये पढ़ने में बहुत अच्छा है, इनकी तालीम को जो है क्या करे, रोकना नहीं चाहिए, बल्कि इनको क्या करे, पढ़ाना ज़रूरी है। आखिर गांव से जो है 11 मील दूर एक बोर्डिंग स्कूल में जो है उन्हें दाखिला करा दिया गया। यानी आखिर टीचरों की समझाने के बाद उनके वालिद ने क्या किया, 11 मील दूर पर एक बोर्डिंग स्कूल में उनको पढ़ने के लिए छोड़ दिया। कॉलेज की तालीम जब मुकम्मल करने के बाद साहा जो है कोलकाता यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज में फ़िज़िक्स के लेक्चरर बन गए। ठीक है, कॉलेज की तालीम जब उन्होंने हासिल करी तो कोलकाता यूनिवर्सिटी में जो है वो साइंस कॉलेज में जो है फ़िज़िक्स का लेक्चर लेने लगे। अब यहाँ इन्होंने फ़िज़िक्स के मौज़ूआत पर बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी और उन्हें अच्छी तरह से क्या कराया, पढ़ाया। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर रहकर उन्होंने और फ़िज़िक्स की बहुत सारी किताबें जो है पढ़ी, और उसके बाद उन्होंने पढ़ाना भी चालू कर दिया। पढ़ाने के लिए अपने लेक्चर नोट तैयार करते हुए उनके सामने जो है एस्ट्रोफिज़िक्स का एक मसला आया। अब लेक्चर जब वो पढ़ाते थे तो उनके सामने क्या आया, एक एस्ट्रोफिज़िक्स का एक परेशानी आ गई। अब इसी मसले को जो है हल करने की वजह से वो दुनिया भर में क्या हो गए, मशहूर हो गए। अब उनके सामने जो एक क्वेश्चन आया ऐसा कि जिसमें वो फंसे, उनके सामने परेशानी जो आई, अब उसी को हल करने की वजह से वो उसमें कामयाबी उनको इतनी मिली कि वो क्या हो गए, पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। अब एस्ट्रोफिज़िक्स जो है सितारों की नौइयत, उनकी गर्मी, उनकी अंदरूनी बनावट और किन किन चीज़ों से मिलकर जो है वो बने हैं वगैरह का मुताला करती है। एस्ट्रोफिज़िक्स का क्या काम है कि सितारे जो है वो कैसे बने हैं, है ना, उनकी गर्मी कितनी होती है, वो अंदर से क्या चीज़ होती है ना, या किन किन चीज़ों से मिलकर जो है वो बना है, इन सब की स्टडी जो है, सितारों की स्टडी को, स्टार स्टडीज़ को क्या कहेंगे, एस्ट्रोफिज़िक्स। अब साहा की उम्र इस वक्त सिर्फ कितनी थी, 25 साल की थी जब वो एस्ट्रोफिज़िक्स की खोज में, उसके मुताले में लग गए थे। साइंसी दुनिया ने इसके काम को क्या किया, बहुत सराहा। यानी कि उन्होंने इसमें जो कामयाबी हासिल करी तो साइंस की दुनिया में उनको बहुत ही ऊंचा मर्तबा हासिल हुआ, लोगों ने बहुत इनकी तारीफ़ करी। अब साहा एक समाजी कारकुन भी थे, यानी कि वो समाज में रहने वाले इंसान थे। समाजी में जो है लोगों की मदद करना, उनको पैसे से और सामान से जो है उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, ये सब उनका काम था। इन्होंने खुद भी जो है गरीबी के दिन देखे थे, है ना, इसीलिए उन्हें मुल्क के गरीब लोगों को क्या रहता था, हमेशा ध्यान रहता था, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से थे, बहुत मुश्किल से जो है उन्होंने पढ़ाई की थी, तो वो गरीबी को समझते थे और उनकी तकलीफ़ को अपना समझ कर उनकी मदद करते थे। अब जब मुल्क जो है तकसीम हुआ और मशरक़ी बंगाल से लोग भाग भाग कर इधर आने लगे, तो उनको आबाद कराने में साहा ने क्या किया, बहुत काम किया। यानी कि जब मुल्क का तकसीम हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब तकसीम हुआ, और बांग्लादेश, मशरक़ी बांग्लादेश और मगरिब जब वो हुआ, तो बहुत सारे लोग जो है हिंदू इधर आने लगे अपनी तरफ, और मुसलमान जहाँ पर रहते थे उस तरफ आने लगे। और उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, साहा ने लोगों की बहुत मदद करी। बचपन में अपने इलाके के सैलाब ज़्यादा लोगों को क्या करें, राहत पहुँचाने के काम में शरीक रहना भी उन्हें हमेशा याद रहा। यानी बचपन में वो जब उनके बंगाल में जब सैलाब आया था, है ना, पानी का सैलाब जब आया था, तो इन्होंने उस वक्त भी क्या किया था, लोगों की बहुत मदद की थी, जबकि वो सैलाब बचपन में आया था, लेकिन उस टाइम से ही उनको लोगों की मदद करने में बहुत दिलचस्पी रहती थी। ठीक है, इन्होंने गौर किया कि सैलाब क्यों और कैसे आते हैं और इस पर कैसे काबू जो है पाया जा सकता है। इसीलिए इसके लिए बहुत से दरियाओं की वादियों के बारे में उन्होंने कई मंसूबे तजवीज़ किए, यानी इसके बारे में भी उन्होंने स्टडी करी कि सैलाब जो है क्यों और कैसे आते हैं, और उसी वजह से जो है उन्होंने बहुत सारे दरियाओं की और वादियों की क्या करी, जो है ना, उनके बारे में उन्होंने मंसूबे बनाए कि कौन से दरिया से जो है कितना पानी आता है और कौन सा पानी कितना गहरा है, कैसा है नहीं, और कब कब उसमें बाढ़ आ सकता है। ये सारी मालूमात उन्होंने हासिल करी। अब 16 फरवरी 1956 को क्या हुआ, इनका इंतकाल हो गया। आखिरकार इनका इंतकाल कब हो गया, साहा का 16 फरवरी 1956 को। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। इसके क्वेश्चन आंसर हम दूसरे वीडियोज़ में करेंगे। और आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।